Hello friends, this is CA Arpit Gupta and I welcome you all in the indirect tax amendment classes through video mode. These classes are applicable for CA final. CA final, the students who are going to appear in the May as well as the November 16 examination. These classes are also applicable for the students who are appearing for CS Professional. CS Professional either in the June 2016 or in the December 2016. At the same time, the classes are also applicable for the CMA Inter and the CMA Final for the same June and December 16 examination. These amendments are the changes which have been applicable by the Finance Act 2015. In these amendments, you will study the changes or the amendment that have been made by the budget 2015, and definitely through this amendment you will be updated, but you should be able to understand these amendments in a better manner if you have a previous knowledge of the old law. Although I will tell you the old law as well as the changes that have been made in the new law, but if you have the previous knowledge of the old law, then definitely it would be an advantageous to you. We will also cover the notifications as well as the circulars issued by the government or the CBEC in these amendment classes. We will also cover the case laws, although the case laws, I am not saying that we'll be only covering the case laws of only 2015 or 2014. We will also cover case laws, all the important case laws which have been recently pronounced by the High Court or the Supreme Court. So let's start with the amendments. You all have the amendment notes which have been issued by us, and these amendments are running into 86 pages. These 86 pages covers the entire amendments as well as the notifications, circulars, and all those case laws which have been pronounced in the recent past. So we'll be covering the amendments starting with the Central Excise Act 1944. तो पेज नंबर 1 पे आइए, सबसे पहले रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी की चर्चा करते हैं. एक्साइज ड्यूटी बिफोर फाइनेंस एक्ट 2015 क्या हुआ करती थी? 12%. ये इसका बेसिक रेट था, और साथ में एजुकेशन सेस लगता था और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगता था. कितना? 2% एंड 1%. ये 12% किसका था? ऑफ असेसेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ द गुड्स के ऊपर लगता था, जबकि ये 2 + 1% किसके ऊपर था? ऑन एक्साइज ड्यूटी. ठीक है, ये एक्साइज ड्यूटी पे था. तो जो रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था वो क्या था? 12.36%. बट आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2015, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2015, फाइनेंस एक्ट 2015 पास कब हुआ? ये लॉ पास होता है नॉर्मली इन द मंथ ऑफ मे. ये प्रेजेंट तो हो जाता है फरवरी के लास्ट डे पे, और मार्च से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल, बट यूजुअली पास होता है मई में. तो ये जरूरी नहीं कि जो भी प्रपोजल डाले गए हों इन द ओरिजिनल बिल वही पास हुए हों. और
मेजॉरिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स कब से अप्लाई करती हैं? जब से ये बजट पास होता है, ठीक है। यहां पर जब कभी भी एक्साइज के और कस्टम के रेट चेंज किए जाते हैं थ्रू द फाइनेंस बिल, तो these amendments immediately becomes applicable. Immediately means immediately on the next day. On the next day when the bill is presented in the parliament. तो बिल कब प्रेजेंट होता है? बिल प्रेजेंट होता है ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी। इसका मतलब जो आपका फाइनेंस एक्ट 2015 है, ये कब प्रेजेंट हुआ होगा? 28 फरवरी 2015 को। लेकिन 1 मार्च से जो रेट के चेंजेस होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। ध्यान से, बिल भले पास नहीं होता लेकिन रेट वाले जो चेंजेस होते हैं वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाते हैं अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इस बिल में लिख दिया है कि रेट चेंज इमीडिएट इफेक्ट से हो जाएंगे, ठीक है। तो इमीडिएट इफेक्ट का मतलब क्या? फाइनेंस एक्ट 2015 तो काफी बाद में पास हुआ, लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हो गया रेट के चेंजेस? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2015। और 1 मार्च 2015 से क्या क्या चेंजेस हो गए? जो आपका बेसिक रेट था वो कितना हो गया? बेसिक रेट हो गया आपका 12.50%। और 12.50% जो बेसिक था, इसके अलावा ईसी और एसएचईसी भी पहले लगा करता था, जो अब खत्म हो गया। ईसी एसएचईसी खत्म करने के लिए, ईसी एसएचईसी को खत्म करने के लिए क्या अमेंडमेंट बेसिक एक्साइज, क्या अमेंडमेंट सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में की गई होगी? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ईसी और एसएचईसी लेविड होते थे थ्रू फाइनेंस एक्ट 2004 और फाइनेंस एक्ट 2007। तो इनकी लेवी अलग लॉ से हुआ करती थी, जबकि यहां पर जो ईसी एसएचईसी खत्म हुए हैं तो इसके लिए अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2004 और 7 में करस्पॉन्डिंगली हो जाएगी। तो अब आपका इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा? 12.50%, ठीक है। 12.50%। कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेरी रही हो कि स्वच्छ भारत सेस भी अप्लाई हो रहा है। डेफिनेटली हो तो रहा है, लेकिन वो स्वच्छ भारत सेस सिर्फ सर्विस टैक्स के रेट के ऊपर हो रहा है, ना कि एक्साइज के रेट के ऊपर। तो एक्साइज का रेट आपका 12.50% ही रहने वाला है। तो ये एक बात कंप्लीट। दूसरी बात यहीं पे सुन लीजिए, मैं ऑल्दो आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी पहली क्लास में आपको बता दे रहा हूं, जो एक्साइज के रेट हैं इसमें ईसीएसएचईसी खत्म हुआ है, सर्विस टैक्स में भी ईसीएसएचईसी खत्म हुआ है, लेकिन कस्टम में ईसीएसएचईसी खत्म नहीं हुआ है। फाइनेंस एक्ट 2004 और फाइनेंस एक्ट 2007 से जब ईसीएसएचईसी इंट्रोड्यूस किया गया था तो 4 सेपरेट सेक्शन इस लॉ में डाले गए थे, 4 सेपरेट सेक्शन। तो जिसमें से 3 सेक्शन तो एक्साइज के लिए, कस्टम के लिए और सर्विस टैक्स के लिए थे, और 1 सेक्शन था इनकम टैक्स के लिए। तो सिर्फ 4 जगह ही एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगता है, जो कि 4 अलग अलग सेपरेट सेक्शन से लेविड था, जिसमें से गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2004 और 7 में अमेंडमेंट करके क्या किया है, सिर्फ सर्विस टैक्स और एक्साइज, इन 2 के रेस्पेक्ट में जो सेक्शंस थे उनको डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स और कस्टम के ऊपर पहले भी ईसीएसएचईसी 3% का लगता था, और आज भी इवन आफ्टर बजट 2015 ईसीएसएचईसी 3% का लगता रहेगा, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी क्लैरिफाइड। चलिए पेज नंबर 1 पे जरा देखिएगा, डिफॉल्ट रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी में पढ़ रहा हूं। डिफॉल्ट रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी with effect from 1/3/2015, general rate of excise duty has been increased from 12% to 12.5% by the notification number 12 by 2015. Education cess as levied at the rate of 2% on all excise duty by Finance Act 2004 has been deleted with effect from 1/3/2015, notification number 14/2015. और secondary and higher education cess levied at the rate of 1% of all excise duty by Finance Act 2007 has also been deleted with effect from 1/3/2015 by the notification number 15/2015.
एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि डेट आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि जिस डेट से ये लॉ चेंज हो रहा है और जिस डेट से रेट चेंज हो रहे हैं वो डेट आपको जरूर याद रखनी है। एक दूसरा क्वेश्चन जो नॉर्मली आया करता है वो ये है, सर क्या हमें नोटिफिकेशन नंबर भी याद रखना है? द आंसर इज नो, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नोटिफिकेशन नंबर। अगर आपको डेट याद है तो दैट इज इट, ठीक है। एक दूसरी अमेंडमेंट जो इसी फाइनेंस एक्ट से आई है वो भी देखिए। एक्साइज ड्यूटी में अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज हुआ करती है। इंडिया में जो एक्साइज ड्यूटी का रेट है ये भी अलग अलग तरीके के इसमें रेट एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि कहीं पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, कहीं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, तो कहीं नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी है एनसीसीडी, कहीं पर एडीडी यानी कि एडिशनल ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, कहीं पर एडिशनल ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, फाइनेंस एक्ट 2005 से लगने वाला हेल्थ सेस, फाइनेंस एक्ट 2004 से लगने वाला एजुकेशन सेस, 2007 से लगने वाला सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इसी तरीके से एक सेस होता है क्लीन एनर्जी सेस। ये क्लीन एनर्जी सेस कहां पर लगता है? क्लीन एनर्जी सेस लगता है कोल, यानी कि जो कोल की प्रोडक्शन है इसके ऊपर जो क्लीन एनर्जी सेस लगता है, यह भी एक तरीके की एक्साइज ड्यूटी है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन सेस या सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जो फाइनेंस एक्ट 2004 से लग रहा था या 2007 से लग रहा था, ये किस पे थे? ऑन ऑल एक्साइज ड्यूटी। ध्यान से सुनिएगा, ऑन ऑल एक्साइज ड्यूटी। ये खुद भी एक्साइज ड्यूटी है। ईसीएसएचईसी नाम तो सेस है इसका, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2004 और 7 में जब ये लॉ इंसर्ट किया गया था, जब सेक्शन आए थे, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये 1% और 2% खुद भी एक्साइज ड्यूटी है, क्योंकि जब ये खुद एक्साइज ड्यूटी है तभी इसकी कलेक्शन एक्साइज की तरीके से होगी। और ये बड़ा लॉजिकल भी है। जरा कॉमन सेंस से सोचिए, ये एक सेपरेट लॉ से अगर इंट्रोड्यूस किए गए थे तो इसके लिए सेपरेट कलेक्शन का मैनर होना चाहिए था, ठीक है। इसके लिए पूरा सेपरेट मैकेनिज्म होना चाहिए था, अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि अलग टैक्स है तो अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग कलेक्शन होना चाहिए, अलग नोटिस जानी चाहिए, अलग ऑर्डर आना चाहिए और पूरा रिकवरी मैकेनिज्म एकदम अलग से होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जब एक्साइज के अंदर इसे डाला गया तो क्या कहा गया? ये एक्साइज ड्यूटी है, और अगर ये एक्साइज ड्यूटी है तो जो प्रोसीजर एक्साइज की कलेक्शन, डिमांड, रिकवरी, नोटिस के लिए होता है वही प्रोसीजर इस 2%, एक 1% के लिए होगा। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि ये 2%, 1% खुद भी एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन जब इसमें परसेंटेज हम लोग लगाते थे तो ईसीएसएचईसी के ऊपर थोड़ा ना लगाते थे। क्यों? क्योंकि ये होता था ऑन ऑल एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट ईसीएसएचईसी, ठीक है, ईसीएसएचईसी। तो दैट मीन्स कि ये 3% का सेस सारी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगेगा, लेकिन खुद ईसीएसएचईसी के ऊपर नहीं लगेगा, भले ही ये एक्साइज ड्यूटी है। लॉजिकल है। तभी हम लोग क्या करते थे, सीधे सीधे 3% लगाते थे, किसके ऊपर? एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट के ऊपर, ना कि ईसीएसएचईसी के ऊपर। चलिए, यह बात क्लियर हो गई। अब जब मैंने यह कहा कि ईसीएसएचईसी सभी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगेगी, और सभी एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या? सभी एक्साइज ड्यूटी का मतलब चाहे वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो एनसीसीडी हो, चाहे वो हेल्थ सेस हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी सेस हो। क्लीन एनर्जी सेस किसके ऊपर लगता है? ऑन कोल। लेकिन अगर ये क्लीन एनर्जी सेस भी एक्साइज ड्यूटी है, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी,
तो इसका मतलब इस सेस के ऊपर भी ईसीएसएचईसी लगता होगा, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी सेस भी एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा है, तो इसके ऊपर भी ईसीएसएचईसी लगा करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगने वाले ईसीएसएचईसी को एग्जेम्प्ट कर दिया था। नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये ईसीएसएचईसी पहले से एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, और अगर ये एग्जेम्प्ट हुआ करते थे तो क्या सबके ऊपर ईसीएसएचईसी लगता था, लेकिन क्लीन एनर्जी सेस के ऊपर ईसीएसएचईसी नहीं लगता था, भले ही एक्साइज ड्यूटी थी, ठीक है। ईसीएसएचईसी के ऊपर क्यों 3% नहीं लगता था? क्योंकि यहां पर लिखा था एक्सेप्ट ईसीएसएचईसी, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं लगता था? क्योंकि ये स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट था, ठीक। बताइए, जब गवर्नमेंट ने रेट को 12.36% से बढ़ा के 12.5% किया, तो जो ईसी और एसएचईसी था ये इधर खत्म हो गया, ठीक है। और अगर ये इधर खत्म हो गया तो क्या इस एग्जेम्पशन की जरूरत है? इस एग्जेम्पशन की कोई जरूरत नहीं। सिंपली सेइंग, ये जो एग्जेम्पशन के रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन आई थी वो खत्म हो गई। यानी कि नोटिफिकेशन खत्म हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? ईसीएसएचईसी नहीं लगेगा। अरे भाई, लगता तो पहले भी नहीं था, लगता तो पहले भी नहीं था। पहले क्यों नहीं लगता था? क्योंकि एग्जेम्प्ट था। अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लगता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहले लगता था, इस वजह से एग्जेम्प्ट करके हटा दिया गया। अब क्या पोजीशन है? अब तो लग ही नहीं रहा है, एग्जेम्पशन की जरूरत क्या है। तो एक नोटिफिकेशन आई, से ईसीएसएचईसी हटाया गया, ठीक। और दूसरी नोटिफिकेशन जो क्लीन एनर्जी सेस के ऊपर लगने वाले ईसीएसएचईसी को एग्जेम्प्ट करती थी, उस नोटिफिकेशन को हटा दिया गया। अगर ना भी हटाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एग्जेम्पशन तो पहले थी, लगती तो पहले नहीं थी, लेकिन अब चूंकि वो बेकार हो चुकी थी, उसको रिसेंड कर दिया गया, ठीक है। चलिए, ये बात मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में लिख के बता रखी है कि नोटिफिकेशन exempting the ECSHEC on the clean energy cess leviable on the coal rescinded consequent to the education cess on excise duty being exempted. Thus the ultimate position remains the same. अल्टीमेट पोजीशन सेम ही है दोनों केसेस में। एजुकेशन सेस वर नॉट पेबल ऑन द क्लीन एनर्जी सेस अर्लियर, पहले भी नहीं होता था, एंड विल ऑल्सो नॉट बी पेबल इवन आफ्टर 1 मार्च 2015, ठीक है। तो होपफुली आई विल बी क्लियर। चलिए, ये तो आपका रेट से रिलेटेड चेंजेस हो गए। अब आइए देखते हैं बजट में और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सेकंड, आपने वैल्यूएशन पढ़ रखा है। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, और गुड्स की वैल्यूएशन अलग अलग सेक्शंस में होती है। एक तो आपने पढ़ रखा है सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 4A और सेक्शन 3(2). वैल्यूएशन नॉर्मली इन 3 सेक्शंस में होती है, हालांकि कुछ रूल्स और भी हैं वैल्यूएशन के लिए। तो आपने जिसमें सेक्शन 4 के अंदर पढ़ रखा था कि अगर 4 कंडीशंस पूरी हो जाएं, तो 4 कंडीशन पूरी होने पे वैल्यू क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। 4 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो 4 के अंदर 4(1)A में असेसेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अगर 4 कंडीशन पूरी नहीं होती तो वैल्यू शैल बी पोज्ड टू वैल्यूएशन रूल्स, और इसके अंदर हम बैठ के वैल्यूएशन रूल्स पढ़ते हैं, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000। सेक्शन 4A के अंदर असेसेबल वैल्यू क्या ली जाती है? असेसेबल वैल्यू होती है अबेटेड रिटेल सेल प्राइस।
अबेटेड रिटेल सेल प्राइस। जबकि सेक्शन 3(2) के अंदर, सेक्शन 3(2) के अंदर वैल्यू होती है टैरिफ वैल्यू, टैरिफ वैल्यू नोटिफाइड। आपने इसके अलावा वैल्यूएशन के कुछ और तरीके भी पढ़े थे। इसके अलावा आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 3A। सेक्शन 3A किस लिए होता है? सेक्शन 3A ये होता है उन गुड्स के लिए जो गुड्स नोटिफाइड है। और अगर आपको याद हो, इसमें पान मसाला से रिलेटेड गुड्स नोटिफाई किए गए हैं। अभी तक 5 नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और 5 नोटिफिकेशंस में जितने भी गुड्स नोटिफाई किए गए हैं वो सब के सब पान मसाला से रिलेटेड हैं। जैसे पान मसाला विद टोबैको, पान मसाला विदाउट टोबैको, इसी तरीके से अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, च्युइंग टोबैको, जर्दा सेंटेड टोबैको। ये 5 तरीके की गुड्स हैं। इन जो नोटिफाइड गुड्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने इसकी वैल्यूएशन नॉर्मल तरीके से नहीं करवाई है। इसके लिए एक सेपरेट वैल्यूएशन मैकेनिज्म पूरा ड्राफ्ट किया गया है और इवन सेपरेट लेवी क्रिएट कर दी गई है। गवर्नमेंट ने इसमें क्या कह रखा है कि जो ड्यूटी चार्ज की जाएगी, एक्साइज ड्यूटी कैसे लेवी होगी? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मशीनों की कैपेसिटी निकाली जाती है, एक मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती है और उसके हिसाब से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तय कर दी जाती है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे इनसे ड्यूटी चार्ज की जाती है, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन बिकम्स इररिलेवेंट। इस केस में गवर्नमेंट को कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन तय करना जरूरी है। बिना कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन तय किए गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर सकती। कैपेसिटी तय करने के लिए फैक्टर्स मुझे चाहिए। कैपेसिटी तय करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फैक्टर रेलेवेंट टू प्रोडक्शन। और जिसके बेसिस पे ये कैपेसिटी तय होती है वो जरूरी नहीं हमेशा मशीनें हो। अगर कोई फैक्ट्री लेट सपोज लेबर इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर जो वर्कर्स होंगे वो फैक्टर्स बन जाएंगे रेलेवेंट टू प्रोडक्शन, उनकी कैपेसिटी तय करने के लिए। और अगर कहीं पे मशीनों से हो रही है तो मशीनें बन सकती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट फैक्टर तय करती है और फैक्टर के बेसिस पे उस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी होती है वो तय हो जाती है। अब अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक इस केस में गवर्नमेंट ने फैक्टर्स क्या बता रखे थे? गवर्नमेंट ने फैक्टर बता रखा था पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन। और इसके लिए पूरे पान मसाला पैकिंग मशीन रूल्स बने हुए थे और पान मसाला पैकिंग मशीन रूल्स के बेसिस पे ही ये पूरी की पूरी जो कैपेसिटी थी पहले वो तय होती थी और कैपेसिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट ड्यूटी कलेक्ट करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्ट नोटिफाई किए थे उनमें से सिर्फ पान मसाला नहीं था। पान मसाला विद टोबैको विदाउट टोबैको तो था ही था, साथ ही साथ में अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सिमिलरली च्युइंग टोबैको और जर्दा सेंटेड टोबैको भी था। पान मसाला जो पैक्ड आ रहे थे उसके लिए पैकिंग मशीन ठीक है, लेकिन अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो खुला मार्केट में बिक रहा है इसके लिए तो कोई पैकिंग हो ही नहीं रही। तो जहां पे पैकिंग नहीं हो रही वहां पर पैकिंग मशीन का कोई जो फैक्टर है वो उन लोगों के लिए रेलेवेंट ही नहीं था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? एक नया फैक्टर नोटिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि अब फैक्टर जो अभी तक नोटिफाइड है उसे तो काम ही नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए जैसे ही गवर्नमेंट ने नया फैक्टर नोटिफाई किया, लेट सपोज नया फैक्टर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया वर्कर, हम नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे तय करेंगे कि फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब एसएससी कहता है ये तो इलीगल है। उसने कहा क्यों?
इलीगल क्यों है? हम फैक्टर नोटिफाई कर सकते हैं, हम फैक्टर नोटिफाई कर रहे हैं और उसी फैक्टर के बेसिस पे प्रोडक्शन कैपेसिटी तय कर ली जाएगी। एसएससी कहता है, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, आपने लिखा है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब एक फैक्टर, और एक फैक्टर ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। नाउ हाउ कैन यू नोटिफाई अनदर फैक्टर? बिकॉज फैक्टर, इट्स अ सिंगुलर नंबर, नॉट अ प्लूरल। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ने फिर क्या कहा? फैक्टर नहीं, फैक्टर्स। फैक्टर्स। गवर्नमेंट सेड कि हम फैक्टर नहीं, फैक्टर्स को नोटिफाई कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट केम। अमेंडमेंट आई, आपको पेज नंबर 1 पे सेक्शन 3A दे रखा है, और सेक्शन 3A में एक्साइज ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और ये अमेंडमेंट भी 1 मार्च 2015 से ही इफेक्टिव है। देखिएगा, मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सेकेंड वाली हेडिंग का लास्ट पैराग्राफ। फाइनेंस एक्ट 2015 हैज इंसर्टेड एक्सप्लेनेशन नंबर 3 in section 3A to provide that factor relevant to production, as mentioned in subsection 2 and 3 include factors, S बढ़ गया, factors relevant to production, and the amendment has been made to enable the central government to specify more than one factor relevant to the production of goods which is notified under section 3A. तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? चलिए आगे देखिए। इसके बाद में जो अगली अमेंडमेंट आई है, ये है सेक्शन 11A में। सेक्शन 11A डिमांड का सेक्शन है, यानी कि डिमांड की शो कॉज नोटिस इश्यू होती है अंडर सेक्शन 11A, और ऑर्डर भी आता है अंडर सेक्शन 11A। 11A में जो शो कॉज नोटिस इश्यू करने का क्राइटेरिया था वो क्या था, ध्यान से देखिए। Central Excise Officer used to issue the show cause notice to assessee, और ये शो कॉज नोटिस अलग अलग तरीके से इश्यू होती है। शो कॉज नोटिस इश्यू करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? Either the show cause notice shall be issued in a bona fide cases or in fraud cases. Bona fide cases में show cause notice issue होती है under section 11A subsection 1। 11A1 फ्रॉड केसेस को छोड़ के जितने भी केसेस हैं वो सब बोनाफाइडी केसेस में आते हैं। यानी कि बोनाफाइडी केसेस क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया, बट फ्रॉड केसेस क्या है वो बता दिया गया। 5 तरीके के फ्रॉड केसेस हैं: फ्रॉड, कोल्यूजन, विलफुल स्टेटमेंट, सप्रेशन, ठीक है, और कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ द लॉ विद एन इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, फ्रॉड, collusion, willful misstatement, suppression of fact, and contravention of any other provision of the act with an intent to evade the payment of duty। तो ये 5 रीजंस फ्रॉड वाले हैं, इनको छोड़ के जितने भी हैं वो सब बोनाफाइडी केसेस हैं। तो बोनाफाइडी केसेस में शो कॉज नोटिस इशू की जा सकती है अंडर सेक्शन 11A1 कब तक? अप टू 1 ईयर फ्रॉम रेलेवेंट डेट, और अलग अलग केसेस में अलग अलग रेलेवेंट डेट नोटिफाई की गई है।
अप टू 1 ईयर। इसको हम लोग बोला करते हैं नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फ्रॉड केसेस में जो 5 केसेस होते हैं, इन 5 केसेस में शो कॉज नोटिस आ सकती है अंडर सेक्शन 11A(4) या 11A(5). और यहां पर शो कॉज नोटिस कब तक आती है? अप टू 5 ईयर फ्रॉम रेलिवेंट डेट। और इसको हम लोग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहां पर जो सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में शो कॉज नोटिस इश्यू होती है, ये 2 तरीके की हैं, एक 4 और एक 5 वाली। यहां पर 11A(4) में कौन सी शो कॉज नोटिस इश्यू होती है? जो फ्रॉड की वजह से है, और 5 वाली भी जो फ्रॉड है। लेकिन 4 में वो केसेस आते हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं। और 11A(5) में वो केसेस आते हैं जो रिकॉर्डेड हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अनरिकॉर्डेड केसेस का और रिकॉर्डेड केसेस का मतलब क्या है? यहां पर जो 11A(4) और 5 में डिफरेंस था वो ये कि 4 में वो केसेस आ रहे हैं जिनकी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसका मतलब दे हैव बीन प्रॉपरली कंसील्ड। इसका मतलब 11A(4) जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला वो इंटेंशनल थे, वो जानबूझ के किए गए थे। जबकि 11A(5) में अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं, अगर उनकी एंट्रीज मिल रही हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या इनवॉइस में या हमारे डेली स्टॉक अकाउंट में या फिर RG23A 23C वगैरह में कहीं पर भी कोई एंट्री मिल रही है, तो इसका मतलब इंटेंशनल कंसीलमेंट नहीं था। इंटेंशनल कंसीलमेंट नहीं था। वहां पर क्या हुआ होगा? वहां पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए और वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंटेंशनल कंसीलमेंट थी। तो जो ट्रांजैक्शंस क्लियर कट कंसील्ड है, जो क्लियर कट इंटेंशनली कंसील्ड है, वो 11A(4) में आते हैं जिनकी कहीं पर कोई एंट्री नहीं मिली। तो इन केसेस में 11A(4) के केसेस में फ्रॉड दोनों में, लेकिन 11A(4) में प्रूव्ड फ्रॉड है, लेकिन 11A(5) में प्रूव करना पड़ेगा कि यह फ्रॉड है। तो ऐसे केसेस फ्रॉड हो भी सकते हैं और फ्रॉड नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है या फिर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स में एंट्री की है, तो इसका मतलब यह है कि वो हो सकता है फ्रॉड ना कर रहा हो। तो इट हैज टू बी प्रूव्ड। तो इस केस में गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट होती है। तो इस केसेस में, दोनों के केसेस में पेनल्टी भी अलग अलग तरीके से लगती है। यहां पर गवर्नमेंट जब ऑफिसर ऑर्डर पास करता है, तो ऑफिसर ऑर्डर किस चीज का पास करता है? एक्साइज ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट। एज यूजुअल हमेशा लगता है एक्साइज ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट। लेकिन जो पेनल्टी लगती है, ये पेनल्टी होती है 100% ऑफ एक्साइज ड्यूटी। जबकि यहां पर जो पेनल्टी लगती है, ये पेनल्टी आपकी 50% हो जाया करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर क्या कहना चाह रही है कि इट हैज टू बी प्रूव्ड। ये 100% श्योर नहीं है कि ये फ्रॉड इंटेंशनली फ्रॉड ही था। ठीक है? तो ऐसे केसेस में ये 11A(4) और 5 में डिफरेंस था। अब व्हाट इज द अमेंडमेंट कमिंग इन दिस सेक्शन? सेक्शन 11A में काफी सारी अमेंडमेंट आई हैं। उन सारी अमेंडमेंट्स को हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। टोटल देयर आर 4 अमेंडमेंट्स अंडर सेक्शन 11A। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पहली अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने सेक्शन 11A(5) इसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। नॉट ओनली 11A(5), बल्कि वो सारे सबसेक्शन जो 11A(5) के बारे में बात करते थे, वो भी डिलीट हो गए हैं। इसमें सेक्शन 11A(5) के साथ में सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7, ये दोनों ही 11A(5) को रेफर करते थे, इनको भी डिलीट कर दिया गया है। यानी कि एज पर अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015 क्या चेंजेस आए हैं? द चेंजेस ये हैं कि अब गवर्नमेंट
ऐसा कोई भी 50% पेनल्टी वाला क्लॉज नहीं रख रही है। अब या तो क्या होगा, सीधे सीधे ट्रांजैक्शन बोनाफाइड होगा, बोनाफाइड है, फ्रॉड नहीं है, क्लियर कट, और या फिर फ्रॉड है। तीसरा कोई केस नहीं है कि इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, या प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, ऐसा कोई केस ही नहीं है। या तो फ्रॉड नहीं है, या तो फ्रॉड नहीं है, या फिर फ्रॉड है। तो इट इज वेरी मच क्लियर। तो ये जो केसेस हुआ करते थे, इनको, ये जो सबसेक्शन 5, 6, 7 है, इसको डिलीट करने के पीछे कारण क्या था? डिलीट करने के पीछे कारण यह था कि अगर असेसी को यहां पर एक एज मिल रहा है, एक एडवांटेज मिल रहा है, और एडवांटेज क्या है? 50% पेनल्टी का रिड्यूस होना। तो वो अगर वो कंसील्ड इंटेंशनल कंसीलमेंट भी है, तो भी वो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के चलता है। वो कहता है ठीक है, ऐसा करते हैं, जानबूझ के मेरी इंटेंशन है फ्रॉड करने की, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के एक सबूत छोड़ देता हूं कि ये लिखिए। कल को कहने को ये हो जाएगा कि मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था और पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया तो क्या है? रिकॉर्डेड है। नहीं पकड़ा तो बच गए। नहीं पकड़ा फिर तो पकड़ा ही नहीं, फिर तो पूरी तरीके से बच गए। लेकिन अगर पकड़ा भी तो कितना? 50%। यानी कि इस केस में वो कभी फंसता ही नहीं था। तो जानबूझ के तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती थी जिससे कि हम लोग 50% पेनल्टी से बच जाएं। तो नाउ एज पर अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015, अब 11A5 सबसेक्शन 6 और 7 ये सब डिलीट हो गए हैं। अब इसके आगे आपको दूसरी अमेंडमेंट देखनी है। इससे पहले मैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आऊं, आपको यह भी बता देता हूं, इसकी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट सेक्शन 11AC में भी हुई है। जो पेनल्टी लगती है ये 11AC में लगती है, तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट 11AC में भी हो गई है। यानी कि 11AC में जो 50% की पेनल्टी लगा करती थी, तो ये 11AC में भी डिलीट हो गई है। बल्कि अभी मैं आपको बताऊंगा 11AC पूरा ही सब्स्टिट्यूट हो गया है, पूरा नया सेक्शन आया है 11AC। तो उसमें ये तो अमेंडमेंट है ही है, प्लस कुछ और भी अमेंडमेंट है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली अमेंडमेंट सेक्शन 11A की हम लोगों ने की, पेज नंबर 1 पे जो दी गई थी। ये फर्स्ट वाला केस था। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि सबसेक्शन 5, 6, 7 हैव बीन ओमिटेड, ओमिट कर दिए गए हैं। दीज सबसेक्शन प्रोवाइडेड फॉर द रिड्यूस्ड पेनल्टी इन केसेस विद फ्रॉड एटसेट्रा वाज इन्वॉल्व्ड, but the transactions were recorded in the specified record. These provisions have now been removed from the central excise legislation so as to bring the uniformity in all fraud cases. पहले fraud cases में uniformity नहीं हुआ करती थी, अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब uniformity आ गई, irrespective of whether the transaction is recorded or not. आज दोनों के लिए एक ही बात है, चाहे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो या ना हो। और थर्ड पॉइंट में देखिएगा, लिखा है कि कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन सबसेक्शन 7A, 8, 11B ऑफ सेक्शन 11A by removing the reference to subsection 5 wherever it occurred in these subsection। और जो स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन थी वो भी डिलीट कर दी गई है, बिकॉज स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स यहीं पर यूज होता था जो टर्म। अब चूंकि सबसेक्शन डिलीट हो गया 5, तो उसी के रेफरेंस में जितनी भी जगह अमेंडमेंट आनी थी, जहां जहां सबसेक्शन 5 वर्ड लिखा हुआ था, वो सभी जगह से हटा दिया गया है। अब दूसरी अमेंडमेंट और आपको देखनी है। सबसेक्शन 5 के बाद में अभी तक सेक्शन 11A में 15 सबसेक्शन हुआ करते थे टोटल, लेकिन एक 16 सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है। किस लिए? जरा देखिएगा। अभी तक क्या होता था? अभी तक एक्साइज ड्यूटी लेवी हुई, एक्साइज ड्यूटी कब लेवी होती है? जब सेक्शन 3 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेक्शन 3 की कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब एक्साइजेबल गुड्स है, मैन्युफैक्चर है और इंडिया में है। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो गई तो एक्साइज ड्यूटी लेवी हो गई। लेवी होने के बाद में गुड्स रिमूव हुए, रिमूवल पे एक्साइज ड्यूटी पेबल हो गई, और ये एक्साइज ड्यूटी पेबल होती है अंडर रूल नंबर 4 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002। ठीक है। ऑल्दो द ड्यूटी इज ओनली पेबल, नॉट एक्चुअली पेड। ड्यूटी की एक्चुअल पेमेंट कब होती है? एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट मंथ। इन द नेक्स्ट मंथ
फॉर द पर्सन हु आर नॉट एसएसआई, जो स्मॉल स्केल पर्सन नहीं है, उन लोगों को हमें नेक्स्ट मंथ में पेमेंट उनसे कलेक्ट करनी होती है. एक्साइज ड्यूटी इज एक्चुअली पेड एज पर रूल नंबर 8. मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और ड्यूटी का पेमेंट कब होता है? ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और ये होता है 5th या 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ. अब चूंकि आज की डेट में सारा पेमेंट ऑनलाइन हो गया है, तो आज की डेट में 5th डेट का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया. अब वो 6th डेट को ही सारा का सारा पेमेंट हुआ करेगा. अब ये तो यूजुअल पोजीशन थी पहले की, और इसमें कोई चेंज भी नहीं है. अब अगर असेसी ने जो ड्यूटी पे की, जो ड्यूटी पे करने की ड्यू डेट है वो है 6 तारीख. 6 तारीख तक उसको पूरा का पूरा ऑनलाइन पेमेंट कर देना चाहिए था. लेकिन अगर यहां पर डिले हुआ तो क्या होगा? डिले के केस में इंटरेस्ट लगता है. इंटरेस्ट लगता है अंडर रूल नंबर 8 सब रूल 3. ठीक है, रूल नंबर 8 सब रूल 3 में एक इंटरेस्ट लगता है, और गवर्नमेंट ने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में एक पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस की है, और ये पेनल्टी 1% की हुआ करती है, जो कि रूल नंबर 83A में लगती है. ये 1% की पेनल्टी है, और इंटरेस्ट हमारा लगता है 18% पर एनम, और ये लगता है 1% पर मंथ. ये पेनल्टी है. ठीक है, अब जरा ध्यान से आपको सुनना है, और इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको समझना है. मैं अभी आपको बता रहा था कि सेक्शन 11A में कुछ अमेंडमेंट आई हैं, और फिर मैं 11A छोड़ के आपको रूल नंबर 8 बताने लगा. आखिर दोनों में लिंक क्या है वो आपको देखना है. 11A का रूल नंबर 8 से क्या लेना देना है. और एक और बात, मैं इससे पहले अमेंडमेंट बताऊं, आपको एक और चीज बताता हूं. सेक्शन 11 ये किस लिए होता है? सेक्शन 11 होता है फोर्सफुल रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी के लिए. 11A में तो शो कॉज नोटिस भेज के डिमांड रेज की जाती है. शो कॉज नोटिस भेजते हैं, ऑर्डर पास होता है, और तब डिमांड आती है. सेक्शन 11 में कोई शो कॉज नोटिस नहीं जाती, सीधे फोर्सफुल रिकवरी होती है. इसमें रिकवरी के मेथड दे रखे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है. सबसे पहले रिफंड एडजस्टमेंट होता है. रिफंड एडजस्टमेंट के बाद में फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट शुरू होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट शुरू होता है. ठीक है, और फिर सर्टिफिकेट एक्शन होता है. तो सेक्शन 11 में फोर्सफुल रिकवरी होती है ऑफ एक्साइज ड्यूटी. तो कोर्सिव मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, फोर्सफुल रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी. आप जरा ध्यान से सुनिए. असेसी ने पेमेंट करना था 6 तारीख को नेक्स्ट मंथ की, लेकिन अगर उसने 6 तारीख को पेमेंट नहीं किया तो सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ? डिले की वजह से हमने इंटरेस्ट इंपोज कर दिया. लेकिन अगर ये डिले 30 दिन से ज्यादा का था, अगर ये डिले 30 दिन से ज्यादा का था, तो पेनल्टी भी इंपोज कर दी गई. और पेनल्टी कितनी इंपोज की गई? 1% पर मंथ. अब क्या असेसी इसका पेमेंट कर देगा? कर देना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट भी लग रहा है, पेनल्टी भी लग रही है. लेकिन ये असेसी तब भी पेमेंट नहीं करता. और अगर ये अब भी पेमेंट नहीं करता, अब क्या करें? इंटरेस्ट पेनल्टी लगाने से फायदा क्या हुआ? वो तो बढ़ता चला जा रहा है. सरकार को तो मतलब पैसा मिलने से था. इंटरेस्ट पेनल्टी तो इसी वजह से लगा रहे थे कि ये डर जाए और पैसा दे दे, लेकिन ये तो डरता ही नहीं है, पैसे नहीं दे रहा. तो अब क्या इसको शो कॉज नोटिस भेजी जाए? जी नहीं, इसको शो कॉज नोटिस नहीं भेजी जाएगी. अब रूल नंबर 8 में इसका जो
सॉल्यूशन वो लिखा हुआ है। अगला कोर्स ऑफ एक्शन होता है क्या? अगला कोर्स ऑफ एक्शन है फोर्सफुल रिकवरी। यानी कि अगर एसएससी पैसे नहीं दे रहा है तो फोर्सफुल रिकवरी की जाएगी ऑफ एक्साइज ड्यूटी अंडर सेक्शन 11। अभी तक मैंने अमेंडमेंट की कोई चर्चा नहीं की, मैंने सिर्फ अभी तक वो प्रोसीजर समझाया है जो एज इट इज है, पहले भी था। तो अगर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाने के बाद में भी पैसा नहीं देता है तो हम सीधे सीधे फोर्सफुल रिकवरी करेंगे एक्साइज ड्यूटी के अंडर सेक्शन 11। ये फोर्सफुल रिकवरी होती है अंडर सेक्शन 11 में, और ये बात कहां लिखी हुई है? रूल नंबर 84 में, रूल नंबर 84 में। और आइए इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको पेज नंबर 5 देखना है। पेज नंबर 5 में सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 का रूल नंबर 84 दे रखा है, और इसमें दे रखा है रूल नंबर 8 of central excise rules contain the provisions pertaining to the manner of payment of excise duty, and sub rule 4 of 8 laid down that duty as assessed, ध्यान से पढ़िएगा, duty as assessed under rule 6 and interest under sub rule 3, duty as assessed under rule 6 and interest under sub rule 3 of rule 8 would be recovered in accordance with the provision of section 11 in the same manner, बिल्कुल उसी तरीके से, as they are applicable for the recovery of any duty or other sum payable to the central government। अब ध्यान से देखिए, यानी कि ड्यूटी असेस्ड अंडर रूल 6 क्या है? रूल 6 किस लिए होता है? यह होता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सेल्फ असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी की सेल्फ असेसमेंट का मतलब यह है कि हमने इनवॉइस बना ली है और इनवॉइस बना के अपनी ड्यूटी उस इनवॉइस में लिख दी है, और हमने इनवॉइस रेज करके अपने जो कस्टमर है उसको दे दी। इसका मतलब ड्यूटी हमारी सेल्फ असेस हो गई, बिकॉज रूल 6 में लिखा हुआ है कि जितने भी असेसीज हैं जो कि एक्साइज के अंडर कवर होते हैं, ये सभी के सभी सेल्फ असेसमेंट करेंगे। इसके लिए उन्हें डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से इनवॉइस को साइन करके सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं ड्यूटी की। लेकिन सिगरेट के केस में एक्सेप्शन है। रूल 6 में लिखा हुआ है कि सिगरेट के केस में डिपार्टमेंटल ऑफिसर को हमें बुलाना पड़ेगा, एससीई को, जो हमारा सुपरिंटेंडेंट होगा उसको फैक्ट्री में बुलाना पड़ेगा। वो फैक्ट्री में आके असेसमेंट करेगा, जो इनवॉइस होगी उसको काउंटर साइन करेगा, तभी सिगरेट फैक्ट्री से बाहर निकलेगी। अब बाकी सभी केसेस में सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल है। तो रूल 8(4) में फोर्सफुल रिकवरी किसकी होगी? एक्साइज ड्यूटी की, एक्साइज ड्यूटी की और इंटरेस्ट की। कौन सी वाली एक्साइज ड्यूटी? जो रूल 6 वाली थी। और इंटरेस्ट कौन सा वाला? जो रूल 8(3) वाला था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा चेंजेस क्या है। मैंने ड्यूटी असेस की है या नहीं की है, या मुझे ड्यूटी देनी है या नहीं देनी है, यह बात किसे पता है? सिर्फ असेसी को, मैन्युफैक्चरर को, और किसी को नहीं। डिपार्टमेंट को यह बात कब पता चलती है कि मुझे ड्यूटी देनी है और कितनी देनी है? डिपार्टमेंट को यह बात पता चलती है जब हम डिपार्टमेंट को यह बात रिटर्न के थ्रू, एक्साइज रिटर्न के थ्रू बताते हैं। यानी कि हम एक्साइज रिटर्न में सारी डिटेल भर के भेजते हैं और उसमें डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि इतना माल क्लियर हुआ और उसके ऊपर इतनी ड्यूटी बनती है। अब असेसी क्या करता है? इनवॉइस रेस करता है। इनवॉइस रेस करता है। रूल 6 में सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद में इसे रूल नंबर 12 में रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी और इस रिटर्न में डिस्क्लोजर देना चाहिए था, लेकिन यह काम इसने नहीं किया। बताइए क्या डिपार्टमेंट को कभी पता चल पाएगा कि आपकी कितनी ड्यूटी बनती है? डिपार्टमेंट को यह बात तब तक पता नहीं चल सकती जब तक डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आपके यहां पर विजिट नहीं करता, और विजिट नहीं करता या फिर आपसे सारी इनवॉइसेस नहीं मंगा लेता। ठीक है,
तो डिपार्टमेंट को यह बात नहीं पता। अब क्या हो रहा है, ड्यूटी असेस हुई, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट को यह बात पता नहीं चली, तो डिपार्टमेंट अब क्या कर सकता है, क्या डिपार्टमेंट इसके लिए फोर्सफुल रिकवरी करेगा? डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं है रिकवरी कैसे होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि रिकवरी किसकी हो पाएगी? रिकवरी उसकी हो पाएगी जो रूल 6 में असेस्ड और जिसकी रिटर्न भी फाइल्ड है। अगर रिटर्न फाइल नहीं है तो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं, और अकॉर्डिंगली नो रिकवरी इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 11। ठीक है, तो पहली गड़बड़ी क्या थी इस सेक्शन में कि लिखा यह था कि रूल 6 में जो ड्यूटी असेस हो गई उसकी रिकवरी सेक्शन 11 में हो सकती है अगर ये सेल्फ असेसमेंट हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली और प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल तभी थी जब डिपार्टमेंट के पास में रिटर्न पहुंचे, और रिटर्न जिन जिन केसेस में नहीं गई उन केसेस की रिकवरी नहीं हो पाती थी। और जो केसेस सेक्शन 11 में आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो केसेस सेक्शन 11 में आ जाते हैं उन केसेस के लिए सेक्शन 11A में शो कॉज नोटिस नहीं इश्यू हो सकती। कॉमन सेंस की बात है कि अगर डिपार्टमेंट उन्हीं केसेस के लिए फोर्सफुल रिकवरी कर रहा है, रिफंड एडजस्टमेंट कर रहा है, या फिर जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, तो वो उन्हीं केसेस के लिए शो कॉज नोटिस भेज के क्या अब असेसमेंट करेगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम तो असेसमेंट से भी कहीं आगे निकल चुके हैं, हम तो अब रिकवरी के ऊपर आ गए हैं, और ये तो उससे पीछे का काम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रिकवरी जब सेक्शन 11 में होती है तो शो कॉज नोटिस 11A में इशू नहीं हो सकती। और यहां केस फंस गया। केस कौन सा फंस गया? एक्साइज ड्यूटी रूल 6 में असेस हुई, असेस होने के बाद में रूल 12 में रिटर्न फाइल नहीं हुई या गलत रिटर्न फाइल हुई और डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन पता नहीं चली। अब चूंकि ये वाला एक्साइज ड्यूटी जिसकी असेसमेंट हो चुकी है सेक्शन 11 से गवर्नड है, तो इसके चक्कर में यहां शो कॉज नोटिस इशू नहीं हो पाती और यहां भी रिकवरी हो नहीं रही। यानी कि दोनों जगह मामला फंसा है। रिटर्न फाइल ना होने की वजह से डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से वो रिकवरी कर नहीं पा रहा, लेकिन चूंकि प्रोविजन सेक्शन 11 से गवर्न है तो वो शो कॉज नोटिस भी नहीं भेज पा रहा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट आई। क्या अमेंडमेंट आई? कि सेक्शन 11 में फोर्सफुल रिकवरी उसी की होगी जिसकी रूल 6 में असेसमेंट हुई, सेल्फ असेसमेंट हुई और रिटर्न भी फाइल हुई। यानी कि डिपार्टमेंट को दोनों बातों की नॉलेज है। ठीक है, तो रिटर्न इज फाइल्ड, तो ड्यूटी की असेसमेंट भी हो गई, रिटर्न भी फाइल हो गई। नाउ दिस इज एन अमेंडमेंट। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, आपने रूल 8(4) के थ्रू सेक्शन 11 में किस किस चीज की फोर्सफुल रिकवरी की? पहला, एक्साइज ड्यूटी जिसकी की रिटर्न फाइल्ड है और जो सेल्फ असेस्ड है। दूसरी, जो इंटरेस्ट है, लेकिन स्पेसिफिक पीरियड के बाद में होने की वजह से आफ्टर 30 डेज आप क्या करोगे? पेनल्टी इंपोज करोगे। अब एसएससी पेनल्टी भी तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने तो कोई पेमेंट ही नहीं करनी है ना एक्साइज दे रहा है, ना इंटरेस्ट दे रहा है, ना पेनल्टी दे रहा है। आपने रिकवरी किसकी किसकी करी? एक्साइज की और इंटरेस्ट की। पेनल्टी की रिकवरी तो भूल ही गए। ये भी तो इसी से रिलेटेड। अब दूसरी अमेंडमेंट क्या आई? पेनल्टी की रिकवरी भी यही होगी। कौन सी वाली? 8(3)A वाली। नाउ 2 अमेंडमेंट कमिंग। पहली, रिटर्न फाइल होगी वो वाली ड्यूटी, और दूसरी 8(3)A वाली पेनल्टी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट अब ध्यान से समझिएगा। ये अमेंडमेंट जो आई है रूल 8(4) में आई है, ना कि सेक्शन 11A में। मैं तो आपको सेक्शन 11A की अमेंडमेंट बता रहा था। सेक्शन 11A में क्या अमेंडमेंट आई है?
मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्शन 11A में सबसेक्शन 15 तक हुआ करते थे। एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सबसेक्शन 16। इसमें क्या लिखा गया होगा? इसमें लिखा गया है जो जो केसेस 8(4) में आ रहे हैं, ये 3 केस जिनके के लिए सेक्शन 11 में प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, वो केसेस 11A से बाहर रहेंगे। इसका मतलब इन 3 केसेस में जहां सेक्शन 11A में काम शुरू हो चुका है, नो शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड। शो कॉज नोटिस नहीं इशू की जाएगी अंडर सेक्शन 11A। और यह बात कहां लिखी गई है? 11A 16 में। ठीक है, शो कॉज नोटिस तो सेक्शन 11A 1 में और 11A 4 में ही इशू की जाएंगी, लेकिन 11A 16 में उन्होंने ये बात क्या डाल दी कि अब शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगी उन केसेस में, ये 3 केसेस जिनकी की रिकवरी सेक्शन 11 में हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड अमेंडमेंट है। पहले आइए रूल नंबर 8 की अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं, सेम पेज नंबर 5 के सेकेंड पैराग्राफ पे। 8(4) The said sub-rule has been amended to provide that duty as assessed under Rule 6, duty as assessed under Rule 6 and mentioned in the written file under these rules, and the interest under sub-rule 3 and the penalty under sub-rule 3A will be recovered in accordance with the provision of section 11। तो जो बोल्ड में मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये अमेंड हो गए। तो it may be noted that section 11A has been amended to provide that provision of section 11A will not apply। ध्यान से, provision of section 11A will not apply in the cases where the non-payment or the short payment of duty is reflected in the periodic return, and that in such cases the recovery of duty shall be made in such manner as may be prescribed in the rule। और क्या prescribed है? सेक्शन 11 में जैसे रिकवरी हो रही है। ठीक है, thus the above amendment has been made in rule number 8(4) to provide that in such cases recovery shall be made under section 11। तो अब आ जाइए पेज नंबर 2 पे, सॉरी पेज नंबर 1 के बॉटम पे देखिए जरा। पेज नंबर 1 के बॉटम पे जो सेकंड अमेंडमेंट मैं आपको 11A 16 की बता रहा हूं वो दे रखी है। Demand provision under section 11A not to apply where the non-payment or the short payment of duty is shown in the periodic return। सेकंड पेज पे आइए, लिखा है a new subsection 16 has been inserted to lay down that the provision of section 11A will not apply to the cases where the liability of duty not paid, short paid is self-assessed and declared as duty payable by the assessee in the periodic return filed by him। In such cases, the recovery of non-payment or the short payment of duty shall be made in such manner as may be prescribed। क्लियर है? तो ये दो अमेंडमेंट आपकी कंबाइंड अमेंडमेंट थी, ये दोनों क्लियर हो गई आपकी। अब इसी से रिलेटेड एक और इशू जरा समझिएगा। अभी अभी आपने एक अमेंडमेंट पढ़ी, अमेंडमेंट सेक्शन 11A में आई थी, जहां पर सेक्शन 11A के सबसेक्शन 5 को, 6 को, 7 को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और इससे इफेक्ट क्या आया? आज की डेट में सिर्फ 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो बोनाफाइड केस है या फिर फ्रॉड केस है। अब फ्रॉड में ये कोई नहीं है कि फ्रॉड इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, या फिर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड में लिखा है, नहीं लिखा है, ये सारे केसेस खत्म हो गए। ठीक, तो अब एक असेसी देखिए क्या कहता है। असेसी कहता है कि ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2015 से। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2015 से आई है, बट ये अमेंडमेंट किस डेट से इफेक्टिव है? ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सारी अमेंडमेंट उस दिन से इफेक्टिव होती हैं जिस दिन से फाइनेंस एक्ट बनता है। और एक्ट हमारे देश में प्रेजेंट जरूर फरवरी में होता है, लेकिन अप्रूव कब होता है? 75 डेज के अंदर। और 75 डेज लगभग 13-14 मई के आसपास में खत्म होते हैं। तो नॉर्मली हर साल 13 मई या 14 मई को ये फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेता है। अब
14 मई 2015 को ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुई और सेक्शन 11A 5, 6, 7 डिलीट हो गया। कुछ असेसीज ऐसे होंगे जिनको कि शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 11A 5 इशू हो चुकी होंगी इस डेट से पहले, ठीक है। और अगर इशू हो चुकी होंगी तो अब ये असेसी क्या कहेगा, ये असेसी कहेगा कि मुझे तो चूंकि शो कॉज नोटिस सबसेक्शन 5 में इशू हुई है तो पेनल्टी मेरे ऊपर तो 50% ही लगनी चाहिए। जबकि ऑफिसर क्या कहेगा, अमेंडमेंट आ चुकी है और अमेंडमेंट चूंकि आ चुकी है तो आज की डेट में 11A 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, और चूंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपकी पेनल्टी तो 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ इस अमेंडमेंट से एक कंफ्लिक्ट अराइज होता है, एंड कंफ्लिक्ट इज कि उन केसेस में जिन केसेस में शो कॉज नोटिस इशू हो चुकी है उनका क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने जब यह अमेंडमेंट की तो इसी के साथ में एक एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस की, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, और ये एक्सप्लेनेशन कहती है वो केसेस जिन केसेस में शो कॉज नोटिस पहले से इशू हो चुकी है दे विल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द old provisions of the section 11A, meaning thereby the cases in which the show cause notice has been issued before 14th of May 2015, in those cases the penalty would be 50%. But the cases in which the show cause notice is being issued on or after 14 मई 2015, पेनल्टी वुड बी 100%, बिकॉज यहां पर 11A 5 में शो कॉज नोटिस इशू हो ही नहीं सकती। इन केस में शो कॉज नोटिस सिर्फ और सिर्फ किस सेक्शन में हुआ करेगी, या तो शो कॉज नोटिस इशू होगी 11A 1 बोनाफाइड केस होगा, या फिर वो 11A 4 का केस होगा फ्रॉड का। जबकि यहां पर 11A 5 भी होता था, 4 भी होता था और 11A 1 भी होता था। ये हटने से इधर की पोजीशन बदल गई। क्लियर है। तो पेज नंबर 2 के ऊपर जो ऊपर से थर्ड पॉइंट दे रखा है आपका सी पॉइंट, इसे देखना है। explanation 2 has been substituted with a new explanation to provide that any non-levy, short levy, non-payment, short payment or erroneous refund where no show cause notice has been issued, जहां show cause notice issue नहीं हुई थी before 14/5/2015, इसका मतलब शो कॉज नोटिस बाद में इशू हुई, तो इन केसेस में दे विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11A एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015। इसका मतलब इसके बाद में जो भी शो कॉज नोटिस इशू होगी वो 11A 1 या 4 में होगी, और पहले जो इशू हो चुकी हैं, पहले जो शो कॉज नोटिस इशू हो चुकी हैं उनमें वही केस पुराना वाला ही चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 11A की चौथी और आखिरी अमेंडमेंट पढ़ते हैं। सेक्शन 11A में शो कॉज नोटिस इशू की जाती है बोनाफाइड केस में 1 ईयर तक और फ्रॉड केसेस में 5 ईयर तक। लेकिन ये 1 ईयर या 5 ईयर काउंट कहां से होते हैं, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, ठीक है। तो चाहे सेक्शन 11A का सबसेक्शन 1 हो या सबसेक्शन 4, शो कॉज नोटिस इशू होती है विद इन 1 ईयर या फिर 5 ईयर, लेकिन दोनों ही काउंट होते हैं फ्रॉम रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट क्या है, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग नोटिफाई की गई है। जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, रेलेवेंट डेट अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग बताई गई है। रेलेवेंट डेट क्या बताई गई है, इन दोज केसेस वेयर द एक्साइज रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड। अगर एक्साइज रिटर्न फाइल नहीं हुई और अगर शो कॉज नोटिस ऐसे केस में भेजनी हुई तो शो कॉज नोटिस कब तक भेजी जा सकती है, यहां पर होती है लास्ट डेट, लास्ट डेट ऑन विच
excise return should have been filed या एक्साइज रिटर्न कैन बी फाइल। तो एक्साइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है? 10 तारीख। नेक्स्ट मंथ की जो 10 तारीख होती है वहां तक एक्साइज रिटर्न फाइल हो सकती है। तो उन केसेस में जहां पर एक्साइज रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, अब यहां पर दो केसेस हैं। अगर फाइल हुई है तो ये फाइल टाइमली भी हो सकती है जो 10 तारीख है, या फिर 10 तारीख के बाद में भी हो सकती है। ऊपर वाले केस में क्या है, फाइल ही नहीं हुई, न 10 तारीख तक न 10 तारीख के बाद में अभी तक फाइल ही नहीं हुई, यानी कि जब तक शो कॉज नोटिस इशू हुई तब तक रिटर्न ही नहीं आई। तो ऐसे केसेस आपके फर्स्ट केस में जाते हैं। लेकिन सेकंड केस में वो केसेस आ रहे हैं जिन केसेस में एक्साइज रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इधर ऑन टाइम या फिर बिलेटेड। अब जो सेकंड केस है इसमें सिर्फ ये वाली सिचुएशन कवर की गई, यानी कि लॉ में लिखा हुआ है कि रेलेवेंट डेट सिर्फ फर्स्ट केस में वेयर द एक्साइज रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन टाइम। ऐसे केसेस में रेलेवेंट डेट क्या होती है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्साइज रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्साइज रिटर्न इस केस में। लेकिन इस केस में कोई डेट नहीं दे रखी थी। ये केस कवर होता है एनी अदर केस में। ये रेजिड्यूरी केस आता है, और एनी अदर केस में क्या, कौन सी डेट होती है? एनी अदर केस में होती है डेट आपकी लास्ट डेट या लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और ड्यू डेट क्या होती है? 5 तारीख। यानी कि अब जरा ध्यान से समझिएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं अप्रैल मंथ की क्लियरेंस हुई, अप्रैल 2015 की, और अप्रैल 2015 की जो क्लियरेंसेज हुई इनके लिए पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए थी? पेमेंट हो जानी चाहिए थी 6/5/2015 तक, और एक्साइज रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए थी? 10/5/2015 तक। अब मान लीजिए अप्रैल मंथ की जो क्लियरेंसेज हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है और इसकी एक्साइज ड्यूटी करेक्टली एस्टिमेटेड या करेक्टली कैलकुलेटेड या डिपॉजिटेड नहीं है। अब ऐसे केस में अगर शो कॉज नोटिस इशू करनी है तो शो कॉज नोटिस, पहले केस की बात करते हैं। इफ द रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड, अगर ये 10 तारीख वाली रिटर्न आई, जब तक डिपार्टमेंट इसको शो कॉज नोटिस इशू करना चाहता है तो डिपार्टमेंट 1 साल या 5 साल काउंट करेगा लास्ट डेट जहां से रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए थी, यानी कि 10 तारीख। और अगर इसने रिटर्न फाइल कर दी तो दो पॉसिबिलिटी, तो 10 तक करी होगी या 10 तारीख के बाद करी होगी। अगर इसने 10 तारीख तक रिटर्न फाइल कर दी तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्साइज रिटर्न ले लेंगे, चाहे वो 6 तारीख हो, 7 तारीख हो, 8 तारीख हो, 9 तारीख हो, 10 तारीख हो। ठीक है। और अगर इसने 10 तारीख तक रिटर्न ही नहीं फाइल करी, अब क्या करेंगे? अब इस केस में ये केस एनी अदर केस में कवर होता है। एनी अदर केस का सीधा सा मतलब जहां पर स्पेसिफिकली कोई इश्यू नहीं दे रखा है, लेकिन दिस केस इज कवर्ड अंडर द रेजिडुअरी हेडिंग। और रेजिडुअरी केस में रेलेवेंट डेट क्या मानी जाती है? लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। आखिरी दिन हम पेमेंट कब कर सकते थे, और वो पेमेंट की डेट उल्टा और पहले आ जाती है, यानी कि 6 तारीख। 6 तारीख से ये 1 साल या 5 साल का पीरियड काउंट होना शुरू होता है। नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल कि अप्रैल 2015 का इशू है और इसकी ड्यू डेट क्या आ गई? 6 मई 2015। ये तो हो गई ड्यू डेट पेमेंट की, और एक्साइज रिटर्न की ड्यू डेट क्या आ गई? 10 मई 2015। ये तो ड्यू डेट है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल में बताता हूं एक्चुअल डेट। मान लीजिए एक्चुअल पेमेंट 1-1.5 साल बाद हुई। से फॉर एग्जांपल एक्चुअल पेमेंट हुई जाके आपकी 1 जनवरी 2016 को, और
ऑन द सेम डेट 1 जनवरी 2016 को रिटर्न भी फाइल कर दी गई। अब जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। अभी आपने जो पीछे पढ़ा उसमें 3 केसेस आपने पढ़े। पहला केस क्या था? रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन टाइम। दूसरा था, पहला था रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड, दूसरा था रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन टाइम, तीसरा था एनी अदर केस। अब आपको मुझे बताना है कि अगर एक्चुअल पोजीशन ये है तो इन 3 में से कौन सा वाला केस यहां पर अप्लाई होगा? वेदर द रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड, नहीं, रिटर्न तो फाइल्ड हुई है। दूसरा था वेयर द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन टाइम, वेदर द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन टाइम, वो भी नहीं लगेगा। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस था तीसरा केस था एनी अदर केस। अब एनी अदर केस में अगर हम इसे एनी अदर केस मानते हैं तो एनी अदर केस मानते हुए आपको मुझे बताना है यहां पर रेलेवेंट डेट क्या मान ली जाएगी? रेलेवेंट डेट हो जाएगी लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। और इस केस में लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या बनती है? 6 मई 2015। अब जरा आप ध्यान से सोच समझ के बताइए, अगर इस व्यक्ति ने 1 जनवरी 2016 को यहां पर पेमेंट की है एक्साइज ड्यूटी की, बट एक्साइज ड्यूटी ओनली, बताइए ये डिले हुआ है करीब करीब 1.5 साल का या 1 साल 7 महीने के आसपास का जो डिले हुआ है, क्या इस डिले के लिए डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी डिमांड करेगा कि नहीं? इंटरेस्ट भी डिमांड करेगा। यानी कि अगर 1.5 साल के आसपास का डिले हुआ है तो इतने डिले का इसे इंटरेस्ट भी जमा करना चाहिए था विद ड्यूटी, और रिटर्न तो फाइल करनी ही करनी चाहिए थी। तो इसने क्या किया? सिर्फ ड्यूटी जमा करी, रिटर्न डिपॉजिट नहीं किया, सॉरी इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन रिटर्न सबमिट कर दी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा? डिपार्टमेंट को यह बात कब पता चली? 1/1/2016 को, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी तक इसे पकड़ नहीं पाया था। जरा ध्यान से सोचिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने अमेंडमेंट पढ़ी थी रूल नंबर 8 सब रूल 4 की, क्या यहां पर रूल नंबर 8 सब रूल 4 लग सकता है? अभी आपने पढ़ा था, जरा सोचिए 8.4 में क्या था? 8.4 में था ड्यूटी सेल्फ असेस हुई हो और रिटर्न फाइल हुई हो। ठीक है, तभी केस सेक्शन 11 में रेफर किया जा सकता है। ड्यूटी असेस हुई, हां ड्यूटी असेस हुई, मैंने बिल बनाया, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं हुई, रिटर्न लेट फाइल्ड थी, और चूंकि रिटर्न फाइल्ड ही नहीं हुई तो डिपार्टमेंट को लॉजिकली पता ही नहीं चल सकता यह बात कि आपकी कितनी ड्यूटी डिमांड, कितनी ड्यूटी आपकी आउटस्टैंडिंग थी, जितनी ड्यूटी डिपार्टमेंट रिकवर कर सकता था। तो चूंकि डिपार्टमेंट को इस बात की नॉलेज नहीं थी, इस वजह से डिपार्टमेंट कुड नॉट ट्रांसफर द केस अंडर सेक्शन 11 और इसकी कोई फोर्सफुल रिकवरी नहीं हो पाई। ठीक, हां इस केस में क्या हो सकता था? इस केस में चूंकि ये रूल 8.4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस केस में सेक्शन 11A में शो कॉज नोटिस रेज की जा सकती है, और शो कॉज नोटिस रेज करके जो पेमेंट यहां पर रह गया है वो डिमांड कराया जा सकता है। अब जरा आप ध्यान से सोचिएगा, अगर इस केस में असेसी को शो कॉज नोटिस डिमांड की जाती है, शो कॉज नोटिस भेजी जाती है, तो शो कॉज नोटिस कब तक भेजी जा सकती है? आपने पढ़ा है सेक्शन 11A में 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4। 1 में भेजेंगे तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम रेलेवेंट डेट, और अगर 4 में भेजेंगे तो विद इन 5 ईयर फ्रॉम रेलेवेंट डेट। मान लेते हैं ये बोनाफाइडी केस था, और अगर ये बोनाफाइडी केस था तो it should have been issued, the show cause notice should have been issued within 1 year from the relevant date. relevant date क्या है यहां पे? relevant date है 6/5/2015, यही relevant date थी। एनी अदर केस में केस आ रहा था ये, ठीक है, और एनी अदर केस में ये केस आ रहा था, तो 6/5/15 से 1 साल जोड़ दीजिए, 5/5/2016 को
5/5/2016 को ये टाइम खत्म हो रहा है। अभी ये 1 साल के अंदर आ रहा है। अगर ये पेमेंट और डिलेड हुई होती, मैं दूसरा केस ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 17 कर देते हैं, ठीक है? तो करीब करीब 1.5 साल के आसपास का डिले हो गया। पहले 6-7 महीने के आसपास का हो रहा था, तो अभी करीब करीब 1.5 साल के आसपास का डिले हो रहा है। अब ऐसे केस में अगर मैं 1 साल काउंट करता हूं, तो 1 साल मेरा निकल चुका है 5/5/2016 को ही, ठीक है? 1 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है। अब इस केस में शो कॉज नोटिस इशू नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है कि ड्यूटी आउटस्टैंडिंग थी। 1.5 साल के बाद में डिलेड ड्यूटी पे हुई, 1.5 साल के बाद में रिटर्न फाइल हुई। इंटरेस्ट जमा होना है, जमा हो सकता है, लेकिन हम मांग नहीं सकते क्योंकि हम शो कॉज नोटिस नहीं इशू कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे डिपार्टमेंट ने बड़े सारे केसेस देखे जिन केसेस में डिपार्टमेंट के साथ में असेसी लेट ड्यूटी जमा कर रहा है, और लेट ड्यूटी जमा करने के बाद में वो जानबूझ के इंटरेस्ट नहीं जमा करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि डिपार्टमेंट के पास में इस इंटरेस्ट को रिकवर करने की कोई पावर ही नहीं रह गई 1 साल के बाद में, अगर वो बोनाफाइडी केस है। तो 1 साल के बाद में डिपार्टमेंट डजंट हैव एनी पावर टू रिकवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which is to be recovered along with the amount of duty, जो एसएससी को ऑटोमेटिकली जमा करनी चाहिए थी, वो उसने नहीं जमा की। बट स्टिल द डिपार्टमेंट डू नॉट हैव द पावर टू डिमांड द इंटरेस्ट। अब ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए, ऐसे केसेस में इंटरेस्ट की रिकवरी जो यहां पर हो सकती थी, वो क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज हमने रेलेवेंट डेट क्या ले रखी थी? रेलेवेंट डेट ले रखी थी हमने लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। बताइए डिपार्टमेंट को यह बात कब पता चली होगी कि इंटरेस्ट भी लेना है? जिस दिन उसने पेमेंट किया, क्योंकि डिपार्टमेंट आज तक हमें पकड़ तो पाया ही नहीं था। डिपार्टमेंट आज तक हमें पकड़ ही नहीं पाया था। ये तो हमने अपने आप से बोनाफाइडी ड्यूटी जमा करी, और अपने आप से जब हमने बोनाफाइडी ड्यूटी जमा करी तो डिपार्टमेंट को पता चला, अरे हां यहां पर तो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, क्योंकि रिटर्न भी फाइल हुई नहीं थी। जब रिटर्न फाइल हुई तो डिपार्टमेंट को पता चला यहां पर ड्यूटी डिमांड बनती है और यहां से भी ड्यूटी आनी चाहिए थी। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट को जब तक ये बात पता चलती है तब तक टाइम पीरियड ऑलरेडी निकल चुका होता है, और डिपार्टमेंट कैन नॉट डिमांड द ड्यूटी। तो रेलेवेंट डेट की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में एक गड़बड़ी थी। इस गड़बड़ी किस केस में हो रही थी? ये गड़बड़ी उस केस में हो रही थी जहां पर रिटर्न तो फाइल्ड है, नॉट फाइल्ड वाले केस में तो आ नहीं रहा, दूसरा ऑन टाइम वाले में भी नहीं आ रहा, ये तीसरे केस में आ रहा है। रिटर्न तो फाइल्ड है बट नॉट इन टाइम, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बिलेटेड रिटर्न है। और रिटर्न फाइल होने के साथ साथ में ड्यूटी जमा हो चुकी है, एंड ओनली इंटरेस्ट इज टू बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट की रिकवरी बाकी है। इस केस में रेलेवेंट गवर्नमेंट ने लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हटा के क्या कर दी होगी? एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो इट इज वेरी सिंपल कि अब उन केसेस में, जिन केसेस में रिटर्न फाइल हुई है लेकिन टाइमली नहीं हुई है, तो इस वजह से इंटरेस्ट और पेमेंट भी टाइमली नहीं हुआ है, इस वजह से इंटरेस्ट बन रहा है। असेसी ने खुद से इंटरेस्ट जमा नहीं किया है। ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट की रिकवरी होगी और उसकी जो शो कॉज नोटिस भेजी जाएगी, वो लास्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से ना भेज के एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट से भेजी जाएगी। यहां से 1 साल 5 साल काउंट करेंगे। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि दिस इज द डेट जब से डिपार्टमेंट को पता चल पाया कि इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो पढ़िएगा ऑन पेज नंबर 2 रेलेवेंट डेट, पेज नंबर 2 पे पॉइंट नंबर डी शुरुआत से। रेलेवेंट डेट इन केस द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन द ड्यू डेट एंड ओनली इंटरेस्ट इज टू बी रिकवर्ड।
देखिएगा सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 clarified that relevant date in case of excisable goods on which the excise duty has not been levied or has not been paid or has been short levied or short paid and the return has been filed on the due date is the date on which such return has been filed. तो जहां पर रिटर्न फाइल्ड होती है वहां पर डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ही ले लेते हैं. तो earlier the relevant date was defined only in case where the return was filed on due date. लेकिन said subclause 2 has been amended to provide that the relevant date in respect of the cases where a return is not filed, ध्यान से, return is not filed, where a return is not filed on due date, मतलब return is filed but delayed filed and only interest is to be recovered. तो ऐसे केस में डेट क्या होगी? इट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी टू विच द इंटरेस्ट रिलेट. ठीक है, तो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट 1/1/2017 है, तो अब यहां से अगले एक साल तक 1/1/2018 तक आपकी शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकती है. ये तो आपका सेक्शन 11A खत्म हो गया.